So, good morning students, myself Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 16. Okay. So, in our previous lecture, what is we have discussed the heat flow through the plane wall, and another is what is conduction of a heat through the means at a constant temperature, means what is a constant thermal conductivity, and another derivation we have to already prove in our previous lecture, variable thermal conductivity, right boys? So these are the topics in our previous lectures: constant thermal conductivity and variable thermal conductivity. Okay. So today we have to discuss the one more derivations, and this is our new derivations which is depends on our previous topics. Okay. So write down this title. The title is heat conduction through a composite wall. Heat conduction through a composite wall. Okay. So what is here? We have a one composite wall will be theirs. In our previous lecture, what is we have? We have the one single wall, plain wall. But in one attempt, the thermal conductivity is constant, and another attempt, the thermal conductivity is changed with respect to temperatures. Okay. But here, boys, the composite wall nature is consist. Composite means more than one. That is called as the composite. Okay. So let's we draw the diagram of this composite wall. So see here, I have to draw this diagram. So this is the composite wall. Okay. So this composite wall is made by the different type of the materials and different types of thermal conductivity. Okay. Suppose I am assume it consists of the three layers. This is first and this is a second. Okay. ऐसे तीन लेयर मैंने इसमें कंसिडर किए बॉयज, एक, दो और तीन. ओके. कंपोजिट है मतलब एक से ज्यादा है. तो इसको मैं नाम देता हूँ, लुक एट, सपोज दिस इज द लेंथ इज यल ए. इसको नाम दिया मैंने यहाँ से यहाँ तक कि इसकी थिकनेस यल ए. इसको यहाँ से नाम दिया बच्चों, सपोज दिस इज द यल बी. ओके. और लास्ट वाला नाम दिया मैंने सपोज यल सी. बराबर है. अब ये जो है ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी वॉल है. ओके. हाउ मेनी वॉल वी हैव टू कंसिडर? वी हैव टू कंसिडर द थ्री वॉल्स, द वॉल ए, बी एंड सी. इसकी थिकनेस यल ए, यल बी और यल सी. उसी तरह इसकी एक थर्मल कंडक्टिविटी भी आ जाएंगी तीनों की. सो लेट्स द थर्मल कंडक्टिविटी इज के ए, दिस इज द के बी एंड दिस इज द थर्मल कंडक्टिविटी के सी. ओके. अब ये वॉल को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं बच्चों. सपोज हीट इज सप्लाई, व्हाट इज क्यू? हीट इज सप्लाई. बराबर है. यहाँ पे आपने लिख लेना. अब इसको क्यू हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट अब ये वॉल के थ्रू फ्लो हो जाएंगी. द हीट इज फ्लो अक्रॉस दिस ऑल द वॉल्स, लेयर 1 2 3. ओके. एंड ऑल दिस आर द ऑल द वॉल इज आर प्रॉपरली अटैच्ड. देयर इज नो एनी गैप इन बिटवीन देम in interior interface. Okay. They are perfectly bound to each other, perfectly attached to each other. There is no any leakage or there is no any gap in between all the walls A, B and C. Okay. अब जैसे इसको हम हीट सप्लाई करेंगे बच्चों, तो यहाँ का मैंने टेम्परेचर अज्यूम कर लिया. सपोज ये फेस का जो आउटरियर फेस है हमारे, ये T1, तो फिर ये ड्रॉप होते जाएगा. तो इधर मैंने कंसिडर कर डाला बच्चों सपोज T2. ओके. ये इधर ड्रॉप हो जाएगा, इधर मैंने कंसिडर कर डाला T3
और ये ड्रॉप होके इधर चल जाएगा, ये हो गया बच्चों T4। तो जब ये हीट सप्लाई होंगी तो हमारे को ग्राफ किस तरह से मिलेगा, पहला ये वाला दिस ग्राफ, फिर दिस साइड ऑफ द ग्राफ, ओके, देन आफ्टर दैट the graph is in last way, suppose here T4, okay, so in this way the graph we have to get it, okay, T1 T3 and T4s, yes or no, yes। तो इस तरह का ग्राफ हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे जब हीट फ्लो हो जाएंगी बच्चों थ्रू दिस सिस्टम्स, yes or no, yes। सो आफ्टर दैट दिस आर द आवर बाउंड्री, ये जो है आउटसाइड, ये क्या है बाउंड्री किसकी, वॉल सी की और वॉल ए की, तो इसको हम नाम दे देते हैं। देखो बच्चों, सपोज दिस इज द टेम्परेचर प्रोफाइल, ये हमारा टेम्परेचर प्रोफाइल है, लीनियर टेम्परेचर प्रोफाइल, ओके। उसके बाद में ये जो है अंदर के फेस है इंटरफेस फेस, इसको नाम दे देते हैं हम इंटरफेस, these are the our interface, yes or no, yes, interface। फिर बाद में हीट यहां से एग्जिट हो जाएंगी, क्यों, ओके। सो these are all the things happen in a composite wall whenever the heat is flow, okay। First T1 to T2, then this one, ओके, एंड देन दिस वंस। अब यहां पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो T1 जो है वो किससे ग्रेटर है, T4 से है, यस और नो, यस। उसके बाद में ये T1 और ग्रेटर किससे है, T2 से भी है, T2 किससे ग्रेटर है, T3 से है, और T3 किससे ग्रेटर है, T4 से है, यस और नो, यस। अगर ये 100 होगा तो ये 80, ये 60 और ये हो गया 40, okay, suppose we consider the one simple example in this way। so what is the heat conduction through the composite wall? अगर इस तरह की कंपोजिट वॉल अगर हमारे पास में है, जैसे हम कंसिडर करते हैं अगर डिफरेंट टाइप ऑफ द एप्लीकेशन व्हेन यू विल डू द जॉब इन कंपनीज, ओके, देयर आर डिफरेंट वॉल्स विल बी देयर, सो हाउ टू हीट ट्रांसफर थ्रू दिस कंपोजिट मटेरियल, सो दैट टाइम we should use these equations, okay। so let's focus here what happen here during these situations। अब यहां पे देखिए बच्चों, by the Fourier's law, by the Fourier's law, by the Fourier's law, okay, Q is equal to what is minus ka dt upon dx, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब मैं फूरियर्स लॉ हर बॉल के लिए अप्लाई करूंगा, बॉल ए बी और सी के लिए, व्हाई, बिकॉज देर इज अ कंडक्शन ऑफ अ हीट थ्रू ऑल ईच वॉल ए बी एंड सी, ओके। तो अब देखिए फूरियर्स लॉ अप्लाई करने के बाद में क्या इक्वेशन मिलेगा, सो लेट्स फोकस हियर। सो फॉर दिस सिचुएशन, ओके, ए के लिए अप्लाई कर रहा हूं मैं, फॉर ए, फॉर ए, तो क्या मिलेगा गाइज, Q इज इक्वल टू के ए, यस और नो, यस, के ए T1 माइनस T2 अपॉन व्हाट इज एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए अपॉन व्हाट इज लेंथ L, ये सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सिंपल। ये डेरिवेशन हमने इसमें भी प्रूव किया है, किसमें, हमारा जो प्लेन वॉल का था डेरिवेशन, वो भी डेरिवेशन मैं यहाँ पे डायरेक्टली अज्यूम कर सकता हूँ बाय द फूरियर्स लॉ और बाय प्लेन वॉल डेरिवेशंस, ओके। ये डेरिवेशन हम प्रूव कर चुके हैं। अब ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है बच्चों, T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, मतलब यहाँ पे T1 हमेशा किससे ग्रेटर है, T2 से। तो क्या मिला फिर, Q इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ए T1 माइनस T2 अपॉन LA, ओके। LA इज द पाथ लेंथ और थिकनेस ऑफ दिस कंपोजिट वॉल।
देन आफ्टर दैट सिमिलर वे फॉर दिस के बी, तो हीट फ्लो द क्यू कांस्टेंट है, तो के बी इंटू एरिया इंटू यहाँ पे क्या आएगा बच्चों अभी T2 माइनस T3, सो T2 माइनस T3 अपॉन यल बी, जिसको बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ओके, सिमिलर वे नाउ फॉर सी के लिए क्या आएगा फिर Q के सी इंटू ए इंटू T3 माइनस T4 अपॉन यल सी, इक्वेशन नंबर 3। ये सब डेरिवेशन हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो कितने इक्वेशन मिले हमारे को, इक्वेशन 1, 2 और 3। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 मिलने के बाद में we have to add all these equations, okay, means summation of the equation 1, 2 and 3। हम तीनों इक्वेशन की क्या करेंगे बच्चों, समेशन करेंगे। ओके, अब तीनों इक्वेशन का हमको समेशन करना है, तो देखिए यहाँ पे अभी, सो आई रीअरेंज द इक्वेशंस। सो आफ्टर रीअरेंजिंग, यहाँ पे देखिए अभी मैं क्या रीअरेंज करता हूँ, सो सी हियर, अब इक्वेशन 1 को मैं रीअरेंज कर रहा हूं, इधर ही करता हूं मैं, यहाँ पे देखिए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं गाइस, देखिए वेरी इजी, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा फिर ये Q इंटू यल ये अपॉन ए। ओके, इसको कहा मैंने सपोज ए इक्वेशंस, फिर इसको लिखता हूं मैं बच्चों T2 माइनस T3 इज इक्वल टू Q इंटू यल बी अपॉन ए, इसको मैंने कहा बी, बराबर है। ओके, फिर इसको लिखेंगे हम T3 माइनस T4 इज इक्वल टू Q इंटू यल सी अपॉन बराबर, देखिए यहाँ पे ए, ये के ए छूट गया, के ए यहाँ पे छूटा, के बी यहाँ पे आ गया ए इंटू के सी, क्वेश्चन नंबर सी। तो ये मैंने लिखा। अब ये तीनों को ए और बी को मैं ऐड करूंगा, तो एडिंग इक्वेशंस ए कॉमा बी एंड सी, इन तीनों को मैंने ऐड किया। तो ऐड करने के बाद में देखिए बच्चों, T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस T3 प्लस T3 माइनस T4, राइट, इज इक्वल टू Q यल ए अपॉन ए इंटू के ए प्लस Q यल बी ए इंटू के बी प्लस Q यल सी ए इंटू के सी। वेरी सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल है बच्चों। अब ये लिखने के बाद में देखिए अब क्या होगा आगे, विच आर द स्टेप्स इज कैंसल, सो दिस आर द T2 गेट कैंसल, माइनस प्लस कैंसल, सो व्हाट इज रिमेनिंग T1 माइनस T4 इज इक्वल टू, लुक एट हियर नाउ। अब यहां पे देखिए क्या कॉमन है बच्चों, Q कॉमन है और ये कॉमन है, तो इसमें से मैं Q बाय ए को क्या निकालूंगा, कॉमन। तो देखिए फिर, या फिर हम पहले Q को निकालते हैं बाद में A को निकालेंगे, वॉट एवर्स, या फिर दोनों निकालते। तो दोनों को मैंने कॉमन निकाला, Q अपॉन, पहले Q को निकालते, Q को मैंने कॉमन निकाला बच्चों, तो क्या बचा फिर यल ए अपॉन ए के ए प्लस यल बी ए इंटू के बी प्लस यल सी अपॉन ए के सी, इसको मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर 4 बच्चों, ये मिल गया। ओके, इसको मैं बुला देता हूँ आगे ऊपर का।
ओके गाइज, अब इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। इक्वेशन नंबर 4 मिलने के बाद में देखिए अभी, अब मैं इसको a को कॉमन निकालूंगा तो देखिए इक्वेशन और क्या होगा अभी, T1 माइनस T4 इंटू a को निकालो अभी Q अपॉन a को निकालो कॉमन, तो अब क्या बचा ब्रैकेट में LA अपॉन KA प्लस LB अपॉन KB प्लस LC अपॉन KC। इसको मैंने बनाया इक्वेशन नंबर 5 बॉयज। ओके, एकदम सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अब इक्वेशन 5 मिलने के बाद में इसको मैं करता हूं मैथमेटिकल एडजस्टमेंट्स। ओके, सो सी हियर व्हाट इज द चेंज। सो आफ्टर द सिंपल मैथमेटिक्स I write down the equation in the form of Q. So if you write down in Q, so what is the equation we have to get? Q is equal to this A is multiplied by this bracket A into T1 minus T4. Okay, cross multiplications, and this will be in dividations. So LA upon KA प्लस LB अपॉन KB प्लस LC अपॉन KC। वी गॉट दिस इक्वेशंस, यस और नो? यस। ओके, सो आफ्टर गेट इसको मैं अगर एक बड़ा ब्रैकेट भी दे सकते हैं, हमारे मन पे डिपेंड है, कैसे भी दो तुम, तुम्हारे मन पे डिपेंड है, योर ओन चॉइस। सिंगल ब्रैकेट दो या फिर बड़ा ब्रैकेट दो। ये इक्वेशन मिल गया, इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 6। Q इज इक्वल टू A T1 माइनस T4 LA अपॉन K प्लस, ये इक्वेशन सब अच्छे से याद में रखना है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कंपोजिट वॉल के और प्लेन वॉल के, तो यू शुड नो ऑल दिस मैथमेटिकल्स इक्वेशंस। सो Q इज इक्वल टू A T1 माइनस T4 अपॉन LA अपॉन KA प्लस LB अपॉन KB प्लस LC अपॉन KC। ये इक्वेशन हमारे को मिल गया बच्चों। अब इसके बाद में देखिए मैं क्या करता हूं मैथमेटिकल एडजस्टमेंट। सो सी हियर, now after that what will we do here? अब ये देखिए इक्वेशन नंबर 4 जो हमारे पास में है, इक्वेशन नंबर 4 आपको दिखा। इक्वेशन 4 के अंदर देखो अभी मैं कैसे लिखूंगा इसको, Q इज इक्वल टू, अगर मैं A के फॉर्म में सबको लिखता हूं क्या मिलेगा मैथमेटिक्स देखिए, T1 माइनस T4 अपॉन, वेरी इजी, वापिस मैं A इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो फिर क्या आ जाएंगे, फिर देखिए रैशनलाइजेशंस, LA अपॉन KA इंटू A, ओके, प्लस LB अपॉन KB इंटू A, ओके, प्लस LC अपॉन KC इंटू A। ठीक है गाइज, सो आई राइट डाउन इन दिस फॉर्म दिस इक्वेशंस। ओके, अब आप लोगों को पता है LA अपॉन KA इंटू ये क्या है हमारा, दिस इज अवर RTH, थर्मल रेजिस्टेंस कंडक्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर वॉल। इसको अगर मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिकल के इक्वेशन के अंदर तो फिर क्या मिलेगा हमारे को, ये हीट क्यों जा रही है, यस और नो? यस। अब ये वॉल क्या एक प्रकार का रेजिस्टेंस है बच्चों, तो हीट अगर सप्लाई होगी इसको Q, तो यहां पे ये वॉल एक रेजिस्टेंस है, यहां से Q निकल जाएगा, यस और नो? यस। इधर का जो टेम्परेचर है ये कितना है मेरे पास में, T1 ये है, T2 ये है, T3 और ये फेस का टेम्परेचर है T4, यस और नो? यस। तो यहाँ पे हमारे पास में थर्मल रेजिस्टेंस है RTH, यहाँ पे है RTHB और यहाँ पे है RTHC बच्चों, RTHA, RTHB, RTHC। अब ये जो थर्मल रेजिस्टेंस है तो ये कैसे चेंज हो गए, तो देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं इक्वेशंस। सो Q इज इक्वल टू T1 माइनस T4 अपॉन,
हम ये पढ़ चुके हैं थर्मल रेजिस्टेंस कंडक्शन की डेफिनेशन ऑलरेडी। तो ये क्या हो गया हमारा RTHA, ये आ जाएगा फिर ब्रैकेट में RTHA प्लस RTHB प्लस RTHC। Yes or no? Yes. In this way we will also get equation. This is equation number 7. Okay. जब इसको हमने काय के फॉर्म में बना दिया, थर्मल रेजिस्टेंस कंडक्शन के बारे में, RTH, RTHB और RTHC जब हीट सप्लाई हो रही ये वाले वॉल से, A से, B से और C से बच्चों। तो फिर देखिए फाइनली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर ये इक्वेशन को कौन बताएगा? वेरी सिंपल, फाइनली वी कैन राइट डाउन Q। अगर हमारे पास में अगर मल्टीपल वॉल्स है, अगर n नंबर वॉल्स है, अगर देयर इज सो मेनी वॉल्स, तो हाउ वी हैव टू डू? वी हैव टू summation all the, so what is in summation? We can write down, if you consider the n number of the slab, if n number wall or slabs will be there, slabs, अगर हमारे पास में n नंबर वॉल है या फिर नंबर ऑफ स्लैब की लेयर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10 ऐसी इन्फिनिटी, तो फिर ये क्या आएगा? RTHB, RTSC, D, E, F लाइक दैट। तो फिर सबका समेशन के लिए क्या इक्वेशन बनेगा बच्चों? द समेशन इज इन ब्रैकेट, ये देखिए क्या आएगा? T1 माइनस इधर आएगा हमारे पास में T n प्लस 1 अपॉन इधर आएगा समेशन I इज इक्वल टू 1 टू द पावर n इनसाइड द ब्रैकेट व्हाट इज RTH, और RTH की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास में? L अपॉन KA, सो L अपॉन KA। ओके, या फिर हम इसको और ऐसा भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू इन ब्रैकेट T ओवरऑल अपॉन व्हाट इज समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 n RTH conductions. Yes or no? Yes. In this way also you can write down, no problems. तो फिर हमारे को कहाँ तक डेरिवेशन प्रूव करना है बच्चों कंपोजिट वॉल के लिए? यहाँ तक, Q इज इक्वल टू T1 माइनस T n प्लस 1 अपॉन समेशन ऑफ 1 टू द पावर n LA अपॉन KA। ओके, तो एग्जाम में अगर पूछा आपको ये डेरिवेशन, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ हीट कंडक्शन थ्रू द कंपोजिट वॉल, तो आपका डेरिवेशन यहाँ तक रहना चाहिए। ओके, तो एकदम सिंपल डेरिवेशन है और मोस्ट IMP डेरिवेशन है। ओके, एंड दिस डेरिवेशन विच इज मोर हेल्पफुल व्हेन वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ओके, सो आई होप यू शुड बी अंडरस्टैंड दिस डेरिवेशन वेरी वेल। ठीक है, कितने वॉल ली थे हमने? 3 वॉल ली है, A, B और C, और सिंपल मैथमेटिक्स से हर डेरिवेशन की स्टेप हमने सॉल्व की, कुछ भी इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। ओके, सो आई स्टॉप हियर। इफ यू लाइक माय वीडियोस, so please share my videos with your friends and another new college friends. Okay, and finally I am saying that stay at home, stay safe. Thank you very much.